السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور دل لگا کر پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ ہم لوگ ایگزام کے لیے 10th اور 12th کے لیے گرامر کلاس لے کر کے آ رہے ہیں۔ آج سیکنڈ کلاس ہے ہمارا۔ فرسٹ کلاس میں ہم لوگ سمجھے تھے کہ اردو قواعد کسے کہتے ہیں، قواعد کا کیا مطلب ہے، اس کا ڈیفینیشن جاننے کی کوشش کیے تھے۔ اس کے بعد اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے ایک ایک کر کے پڑھے تھے۔ پھر حروف کے بیان پڑھے تھے، اور حروف کے بیان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف کی کتنی قسمیں ہیں، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پتا حروف تہجی کیا ہے، ایک مرتبہ پچھلے کلاس کا ہم لوگ ریوائزنگ دیکھ لیتے ہیں نا۔ ہم نے بتایا تھا حروف تہجی کتنے ہیں، حروف تہجی 52 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 52 ہیں۔ اسی میں ہم نے بتایا تھا حروف تہجی میں حروف مفرد کیا بتایا تھا، حروف مفرد کتنے ہیں، حروف مفرد ہم نے بتایا تھا 37 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 37 ہیں۔ اور حروف مرکب ہم نے بتایا تھا حروف مرکب 15 ہیں، ہے نا۔ 15 اور 37 کو جب آپ جوڑیں گے تو 52 ہو جائے گا، ہے نا۔ اب پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہیں کہیں پہ حروف مفرد 51 بھی آیا ہے۔ اگر 51 52 دونوں رہے تو آپ کو 52 پہ ٹک لگانا ہے، اگر صرف 51 رہے تو 51 پہ ٹک لگانا ہے، صرف 52 رہے تو 52 پہ ٹک لگانا ہے۔ کلیئر؟ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مفرد میں کون کون آتے ہیں، مرکب میں کون کون آتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو حروف شمسی پڑھایا تھا۔ کیا پڑھایا تھا؟ حروف شمسی پڑھایا تھا۔ حروف شمسی ہم نے آپ کو بتایا کہ 14 ہیں۔ حروف شمسی کتنے ہیں؟ 14 ہے۔ جس الف لام کے بعد یہ حروف شمسی آتے ہیں، اس حروف شمسی سے پہلے اگر الف لام آتے ہیں تو الف لام میں سے لام سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو بتایا حروف قمری، حروف قمری بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 14 ہے۔ اور حروف قمری کہتے ہیں اس حروف کو کہ جن سے پہلے اگر الف لام آ جاتا ہے تو لام کو پڑھا جاتا ہے نا۔ اس کے بعد پھر ہم نے بتایا تو حروف منقوط پڑھایا تھا، حروف غیر منقوط پڑھایا تھا، ہے نا۔ حروف موحدہ پڑھایا تھا، حروف مثنات، حروف مثلثہ، حروف فوقانی، تحتانی، سب ہم آپ کو ڈیٹیل سے فرسٹ کلاس میں ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں نا۔ یہ ہمارا سیکنڈ کلاس ہے۔ سیکنڈ کلاس میں ہم اعراب کی قسمیں دیکھیں گے، ہے نا۔ کیا دیکھیں گے؟ اعراب کی قسمیں دیکھیں گے۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے ہم شروع کرتے ہیں نا، بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارا جو کلاس ہے۔ سب سے پہلے اعراب کا بیان، ہے نا، اعراب کا بیان پڑھیں گے۔ آپ کو پتا ہے اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، ہے نا۔ کہتے ہیں اعراب کے لغوی معنی، ہم یہاں پہ کیا دیکھیں گے؟ لغوی معنی۔ اعراب کے لغوی معنی ہیں گھوڑا دوڑانا یا تیز کرنا۔ اعراب کے معنی لغوی معنی گھوڑا دوڑانا یا تیز کرنا۔ چونکہ حروف کی آوازیں اعراب کے ذریعہ تیز ہوتی ہیں اس لیے انہیں اعراب کہتے ہیں، اس لیے انہیں کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کو حرکات و سکنات بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ ابھی آپ کو بتایا نا زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جانیں گے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں اعراب کی 8 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں۔ آپ یاد رکھیں گے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں، ہے نا۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں گے۔ اگر پوچھ لے گا بتائیں اعراب کی کتنی قسمیں ہیں تو ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں اعراب کی 8 قسمیں ہیں۔ کیا کیا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے زبر، ہے نا۔ زبر ہی کا دوسرا نام ہے فتحہ، زبر ہی کا نام ہے نصب۔ چاہے نصب بولے، فتحہ بولے یا زبر بولے، ایک ہی چیز مراد ہوتا ہے۔ نمبر 2 زیر، زیر کو ہی کسرہ کہتے ہیں، ہے نا، جزم نہیں۔ زیر کو کسرہ کہتے ہیں یا جر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ پہلا زبر، دوسرا زیر، تیسرا پیش، پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، رفع بھی کہتے ہیں۔ چوتھا ہے سکون یا جزم، پانچواں مد، چھٹا تشدید، ساتواں تنوین، آٹھواں وقف، ٹھیک ہے۔ یہ 8 قسمیں اعراب کی ہیں، ہے نا۔ مد کی پہچان آپ جانتے ہیں، مد اسے کہتے ہیں، تشدید اسے کہتے ہیں، جزم اسے کہتے ہیں یا سکون، ہے نا۔ تو سب کی پہچان بھی آپ کو یاد رکھنی ہے۔ حروف ساکن کے بعد اعراب نہ ہونے کو وقف کہتے ہیں، نا۔ بہت سارے لوگ ساکن میں اور وقف میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے بتا رہے ساکن کے بعد اعراب نہ ہو تو کیا کہلائے گا؟ وقف کہلائے گا۔ جیسے دوست ہے، مرد ہے نا، یہ اگزامپل ہے۔ اعراب کے اعتبار سے حروف کی اقسام، اب بتا رہے ہیں اعراب کے اعتبار سے حروف کے کیا کیا قسمیں ہیں وہ بتانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حروف تہجی میں الف، نون، واو، ہا اور یا، یہ 5 حروف الف، نون، واو، ہا اور یا کو چھوڑ کر سارے حروف کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حروف تہجی پڑھے ہیں 52 ہیں، 52 میں سے یہ 5 الف، نون، واو، ہا اور یا کو
छोड़कर किसी भी हरूफ के पढ़ने में उनकी आवाज में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन इनके पढ़ने में थोड़ा फर्क होता है, इसलिए कह रहे हैं सिर्फ इसी 5 तहजी हरूफ के तलफ़ुज़ की अदायगी में फर्क है। इन पांचों तहजी हरूफ की तफसील मंदरजा झैल है ना। अब बताएंगे कि ये 5 हरूफ की आवाज में, अदायगी की आवाज में जो फर्क होता है, तो पांचों के डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 अलिफ ममदूदा, नंबर 2 अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं, अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जो खींच कर पढ़ा जाए और उसके ऊपर मद का निशान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पहचान करेंगे, ठीक है। इसी से पकड़ में आ जाता है कि ममदूदा में मद छुपा हुआ है ना। तो जिस अलिफ पर मद हो, हम समझ जाएंगे अलिफ क्या है, अलिफ ममदूदा है। जिस अलिफ पर यूं, इसको बोलते हैं मद, जिस अलिफ पर मद हो वो अलिफ ममदूदा कहलाता है। जैसे आज, आम, आराम वगैरह, है ना, एग्जाम्पल बहुत है। आज देखिए ना, मद है ना, मद है, तो इसीलिए इन अलिफ को बोलेंगे ये अलिफ ममदूदा है। नंबर 2 अलिफ मकसूरा, उस अलिफ को कहते हैं जिसे खींचकर ना पढ़ा जाए और जिस पर मद का निशान ना हो, जैसे काबिल, कामिल, आदिल, अजान वगैरह। इन अलिफ पर देखिए मद नहीं है। जिस अलिफ पर मद ना हो और उसे खींचकर ना पढ़ा जाता हो उसको अलिफ मकसूरा बोलेंगे। जिस अलिफ पर मद हो उसे थोड़ा खींचकर पढ़ा जाए उसे क्या बोलेंगे, उस अलिफ को अलिफ ममदूदा बोलेंगे। जैसे देखिए है ना, आज खींच के पढ़ा गया, आराम खींच के पढ़ाया था, आदाब खींच के पढ़ाया था, इसलिए उसको बोलते हैं ममदूदा। मद के माने होते हैं तो खींच कर पढ़ना, जिसे खींच कर पढ़ा जाए, है ना। अब आगे है नून की 2 किस्में हैं। नून की कितनी किस्में हैं, नून की 2 किस्में हैं, नून ज़ाहिरा और नून बातिना। नून की 2 किस्में, नून ज़ाहिरा, नून बातिना। नंबर 1 नून ज़ाहिरा, जिस नून को साफ साफ पढ़ा जाए, जिस नून को साफ साफ पढ़ा जाए, तलफ़ुज़ की अदायगी में जो जो नून बाज़ाब्ता आता हो, है ना, तलफ़ुज़ में आता हो, यानी तलफ़ुज़ की अदायगी के वक्त पूरे तौर पर जाहिर किया जाए जिस नून को, जैसे कान, पान, शान, आन, बान, है ना, वगैरह। नून जाहिर में नुक्ता होता है। एक यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं कि नून जाहिर में क्या होता है, नुक्ता होता है। जैसे यहाँ देखिए जितना भी एग्जाम्पल है, कान में नून है, पान में नून है, शान में नून है, आन में नून है, सब में क्या है, नुक्ता है कि नहीं, सब में नुक्ता है। तो एक पॉइंट बता रहे हैं कि नून जाहिरा उस नून को कहेंगे जिस नून को है ना साफ तौर पर जिसके तलफ़ुज़ होता हो, और एक पॉइंट बता रहे हैं कि जिस नून पर क्या हो, नुक्ता हो। क्लियर है। नंबर 2 नूने बातिना। नूने बातिना का दूसरा नाम नूने गुन्ना भी है, जिसकी आवाज नाक से निकले, यानी तलफ़ुज़ की अदायगी के वक्त पूरे तौर पर अदा ना किया जाए, जैसे रंग, जंग, चांद, माँ, है ना। देखिए क्या है, रंग नून की आवाज नाक से निकल रही है, जंग नून की आवाज नाक से निकल रही, चांद नून की आवाज नाक से निकल रही है, माँ नाक से निकल रही है ना, तो उसको बोलेंगे नूने गुन्ना या नूने बातिना। अब यहाँ एक बात सुन लीजिए, यहाँ पे जो पॉइंट बताया था नूने जाहिर में नुक्ता होता है, ये आम तौर पे बता रहा है, ये नहीं कि होता ही है, जरूरी है ऐसा नहीं, यानी आम तौर पर ऐसा होता है। और कहीं पे जो आ गया ये आप जो देख रहे हैं ये अपवाद में आता है ना, नादिर है, शाज। एक नोट बता रहे हैं, नूने गुन्ना को नूने खफी या गैर मलफूजी भी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कि नून की 2 किस्में हैं, एक नूने जाहिरा और एक नूने बातिना, वही कह रहे हैं नूने बातिना को नूने गुन्ना भी कहते हैं, नूने गुन्ना को नूने खफी या गैर मलफूजी भी कहते हैं, क्योंकि वो नून तलफ़ुज़ में अदा नहीं होता है इसलिए गैर मलफूजी कहते हैं, वो नून तलफ़ुज़ में छुप जाता है इसलिए नूने खफी कहते हैं। क्लियर है। जब दरमियान में नून आए तो उस नून पर जज्म होता है, और जब आखिर में नून गुन्ना आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता है, जैसे चांद गूंज यहाँ वहां। एक बात बता रहे हैं कि देखिए क्या है कि जब दरमियान में नून आए तो उस नून पर जज्म होता है, और जब आखिर में नून गुन्ना आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए चांद है, बीच में है तो नुक्ता है नून गुन्ना का, लेकिन वही अगर आखिर में आया है वहां यहां तो उस पर नुक्ता नहीं है। वही बात बता रहे हैं, नूने गुन्ना अगर बीच में वो नूने गुन्ना है उस पर नुक्ता होगा, लेकिन वही नूने गुन्ना आखिर में आए, जैसे माँ, कहाँ, वहां, यहाँ, जहां, पिन्हा, उसमें नून नुक्ता नहीं होता है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखिए वाव की 3 किस्में हैं। अभी पहला हम लोग क्या पढ़े,
अलिफ 2 किस्में है, फिर पढ़े नून 2 किस्में है, लेकिन हाँ वाव में 3 किस्में। कितनी किस्में है? 3 किस्में है। नंबर 1 वाव मारूफ, नंबर 2 वाव मजहूल, नंबर 3 वाव मादुला। अब सबका डिफरेंशिएशन जान लेते हैं हम लोग। जिस वाव से पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए, जैसे खूब, दूर वगैरह, तो ऐसे वाव को वाव मारूफ कहते हैं। देखिए ये वाव है, वाव से पहले जो खा है इसमें पेश छुपा हुआ है, इसीलिए इस वाव को थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, खूब। ऐसे ही ये वाव से जो पहले जो दाल है उस पर पेश छुपा हुआ है, इसलिए सोचा खींच के पढ़ते हैं, दूर, इसीलिए इस वाव को क्या बोलते हैं? वाव मारूफ बोलते हैं, क्योंकि खींच कर पढ़ाया गया। और वाव मजहूल जिस वाव से कबल पेश जरूरी नहीं होता और उसे खींच कर नहीं पढ़ा जाता, जैसे जोर, शोर वगैरह। वाव मजहूल में क्या होता है? वो वाव जो होता है उससे पहले पेश नहीं होता है और उस वाव को खींच कर भी नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए उस वाव को बोलते हैं वाव मजहूल। जैसे जोर, देखिए जल्दी पढ़ा गया। शोर, अगर इसको हम लोग देर से पढ़ेंगे खींच के तो गलत हो जाएगा, इसलिए इस वाव को क्या बोलते हैं? ये वाव वाव मजहूल है। आगे 3 नंबर वाव मादुला। वाव मादुला उस वाव को कहते हैं जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा उसको नहीं जाता है। जैसे देखिए ख्वाब, ख्वाहिश, खाह, खाजा, इसमें जितने वाव है लिखा गया है, दिख रहे हैं आप लोग, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तलफ्फुज करेंगे, ये वाव पढ़ा नहीं जाएगा। ख्वाब, ऐसा लगता है क्यों लिखा हुआ है ना, ख्वाब, ख्वाब आ सकिन ख्वाब, लेकिन ये क्या लिखा हुआ? ख्वाब लिखा हुआ है, पढ़ते हैं ख्वाब। ख्वाहिश लिखा हुआ है, पढ़ते हैं ख्वाहिश। चूंकि वाव नहीं पढ़ा गया, इसलिए ऐसे वाव को क्या बोलते हैं? वाव मादुला बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हा की किस्में। हा की भी 2 किस्में हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। वह हा जो तलफ्फुज में अदा किया जाए उसे हाय मलफूजी कहते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन जिस हा का हो, यानी पढ़ने में जिस जो हा पता चले कि यह हा पढ़ा गया, तो ऐसे हा को बोलेंगे हाय मलफूजी। जैसे देखिए कोह, हा पढ़ा जा रहा है, सुनने में आ रहा है ना कि हा बोला गया। राह, सियाह, तो ऐसे हा को बोलते हैं हाय मलफूजी। हाय मुख्तफी, खिफा के मानी होते हैं छुपना, छुप जाना। इसको मुख्तफी नाम क्यों दिया? क्योंकि हा लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, छुप जाता पढ़ते वक्त, इसलिए इसको हाय मुख्तफी कहते हैं। जो हा तलफ्फुज में नहीं आती है बल्कि माकबल की हरकत को जाहिर करती है, जैसे परवाना, जमाना वगैरह। अब देखिए परवाना हा है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो ये हा नहीं अदा होगा, सिर्फ माकबल जो हर्फ है उसी को पढ़ के खत्म कर देंगे। परवाना, जमाना, ठीक है। किस्सा, जैसे ये देखिए किस्सा, किस्सा है, हा लिखा हुआ है लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो किस्सा तलफ्फुज में अदा नहीं होता है, छुप जाता है, इसलिए बोलेंगे ऐसे हा जो पढ़ने में ना आए, तो ऐसे हा को बोलेंगे हाय मुख्तफी। जो हा पढ़ने में आए वह है मलफूजी, जो हा पढ़ने में ना आए, तलफ्फुज में अदा ना हो, उसको हाय मुख्तफी बोलेंगे। या की 2 किस्में हैं। शुरू में 5 हर्फ जो बताया था उसमें सबसे आखिरी हर्फ जो बताया था वो या है। तो या की 2 किस्में हैं, या मारूफ, या मजहूल। ठीक है, या मारूफ किसे कहते हैं देखते हैं। या जिस या को खींच कर पढ़ा जाए उसे या मारूफ कहते हैं, जैसे अमीर, गरीब, वजीर, हकीम, जितना बड़ा आप ले सकते हैं। अब ये या को देखिए, इस या को खींच कर पढ़ा गया। ये गरीब की में जो या है इस या को खींच कर पढ़ा गया, वजीर में जो या है खींच कर पढ़ा गया, इसीलिए बोलेंगे ये या क्या है? या मारूफ है ना। नंबर 2 या मजहूल, जिस या को खींच कर ना पढ़ा जाए उसे या मजहूल कहते हैं, जैसे शेर, जैसे देर, जैसे दिलेर, है ना। ये या खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे या मजहूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या मजहूल बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग पढ़े थे एराब के एतबार से, है ना, हरूफ की किस्में, जिसमें हमने आपको बताया था कि हरूफ तहज्जी जो 52 हैं, सारे के सारे अपने की तलफ्फुज में जो हरूफ हैं वो अपने आवाज पर रहते हैं, लेकिन ये 5 हर्फ जो है, अलिफ क्या क्या है? अलिफ है, नून है, उसके बाद क्या कहते हैं? वाव है, हा है, या है। ये 5 का जो तलफ्फुज होता है तो ये इसकी आवाज में फर्क पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं, कहते हैं, कई नाम अलग अलग है, इसलिए इसका हमने आपको डिटेल से समझाया कि अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मारूफ, अलिफ मजहूल। नून की 2 किस्में हैं, नून ज़ाहिरा, नून बातिना। वाव की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, फिर पता है वाव मादुला। हा की 2 किस्में हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। फिर हमने बताया या की भी 2 किस्में हैं, या मारूफ, या मजहूल। ठीक है,
कैसा लगा आपको क्लास, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई को भी शेयर करें ताकि सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। 9th के लिए भी है, 12th के लिए है, 11th 12th सबके लिए है। हालांकि और जो DLED वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, सबके फ़ायदे के लिए यकसा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।